Good morning students. Today we are going to continue unit 9, that is financial management, and the topic is working capital. In the last lecture we had discussed that need of business capital is of two types, that is fixed capital and working capital. Fixed capital we had already discussed. In this lecture we are going to discuss the concept of working capital. Now what is the concept of working capital? Working capital is difference between current assets and current liability is known as working capital. To clearly understand the meaning of working capital, the balance sheet of company is divided into four parts, that is liability, amount, assets or amount. Current liability, current assets, fixed liability, fixed asset. So difference between current assets and current liability is known as working capital. In this balance sheet, what is the amount of working capital? 50,000 minus 35,000, that is current assets minus current liability. 15,000 is known as working capital. So this is the concept of working capital. Working capital refers to difference between current assets and current liability is known as working capital. Working capital, it is a portion of capital, capital which is invested in short term asset is known as working capital. Now what is the meaning of net and gross working capital? Net working capital means difference between current assets and current liability is known as net working capital. And what is the concept of gross working capital? Gross working capital is known as aggregate of current asset is known as gross working capital. In this example, if we deduct 50,000 minus 35,000, that means 15,000 is known as net working capital. That means difference between current asset and current liability. 50,000 minus 35,000, 15,000 is known as net working capital, and gross working capital aggregate of current asset. That means 50,000 is known as gross working capital. Now next is need or significance of working capital. What is the concept of working capital? As we know that the working capital, that means it refers to those assets which get converted into cash within 1 year is known as working capital. Before understand the meaning of working capital, its need of business. Business is having a need of two type of capital, that is fixed capital, fixed asset. Business has two types of assets, fixed asset and current assets. What is the concept of fixed assets? Like investment in long term asset, that means plant and machinery, land and building, these all are known as fixed asset. Now what are the concept of current assets? Current assets are those assets which get converted into cash within 1 year, like cash in hand, cash at bank, bill receivable, finished goods, marketable securities, raw material, debtors, work in progress, prepaid expenses, these all are known as current assets. In business, both assets, fixed assets as well as current assets, both are necessary for running the smooth way of both current assets and fixed assets are necessary, are mandatory for the business. Fixed assets raise the structure of business, but to run the smooth way of working of business, current assets is compulsory for the business. Like fixed asset raise the structure of business, that means it purchase the building and to purchase the fixed assets, these all are the fixed asset. But what is the role of current assets? अब क्या है कि हमें रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसकी पब्लिसिटी करना, ये सारा हमारा किसके अंदर आता है? ये सबको बिजनेस को स्मूथ वे से रन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वर्किंग कैपिटल की. ये सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वर्किंग कैपिटल की. दैट मीन्स फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है, और दोनों जो है वो एक प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए. वर्किंग कैपिटल नीड से बहुत ज़्यादा भी ना हो और नीड से बहुत कम भी ना हो. तो वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है. नाउ व्हाट आर द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल? फर्स्ट इज डेली एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेस. अब हमारे जो डेली एक्सपेंसेस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं डेली बिजनेस में, तो उन सब के एक्सपेंसेस की ऑन टाइम पेमेंट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. सेकेंड, करंट लायबिलिटीज.
हमें करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल हमें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, हमें बिल्स पे करने हैं, तो उसके लिए हमें अगर हमें ऑन टाइम अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है तो भी वर्किंग कैपिटल की नीड है। उसके बाद कैश डिस्काउंट। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे क्रेडिटर्स ने हमें कह दिया कि अगर आप ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो और इसकी पेमेंट अगर आप हमें कैश में कर दोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उनको कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो इससे इसका भी बेनिफिट हमें मिलता है कि हमें 5% डिस्काउंट मिल गया। फिर फोर्थ है फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। कभी कभी हमारे बिजनेस में फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में वर्किंग कैपिटल है तो हम उस फेवरेबल अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। फिफ्थ, कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन। अब हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्शन है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, तो इसके लिए भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। बेटा कभी कभी होता क्या है कि हमने गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, सेमी फिनिश गुड्स को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, बट उसको सेल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट मीन्स जब तक हमारे पास अमाउंट नहीं आएगा क्या हमारी प्रोडक्शन रुकी रहेगी? नहीं, हमें अपनी प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वर्किंग कैपिटल की। तो एक बिजनेस में देखो फिक्स्ड कैपिटल नो डाउट बहुत कंपलसरी है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के बेसिस पे ही हम अपने बिजनेस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर रेज कर सकते हैं, बट उसको स्मूथ वे से रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत है। जो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में जो वर्किंग कैपिटल है, दैट मीन्स इट इज द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अपने फर्म में अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में वर्किंग कैपिटल है तो हमारी फर्म की लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। और फर्म की लिक्विडिटी मेंटेन होने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे डेली एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस की हम ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे एक्सपेंसेस और सारी लायबिलिटीज की ऑन टाइम पेमेंट होगी तो डेफिनेटली वो फर्म की रेपुटेशन अपने आप रेज होगी। तो फर्म की रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी है। नीड तो इसकी हमें समझ में आ गई कि किस लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। एक बिजनेस के लिए फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल दोनों की जरूरत है सफिशिएंट अमाउंट में। फिक्स कैपिटल हमारा क्या होता है कि हम फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जो हमारी डेली डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। फिक्स एसेट तो दैट मीन्स वो तो रेपुटेशन हमारी मेंटेन करती ही है, बट करंट जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल भी हमारी परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी का इंडेक्स है। दैट मीन्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एक्सपेंसेस, सारी लायबिलिटी की पेमेंट विद इन टाइम हो रहा है। तो फर्म के लिए स्मूथ वे से वर्किंग के लिए बोथ कैपिटल इज नीडेड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल की। क्या जरूरत है वर्किंग कैपिटल की, सबको क्लियर है? हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज अ पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू दोज एसेट which get converted into cash within 1 year। ठीक है, वर्किंग कैपिटल तो हमारा डेली रूटीन के एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टाइम पीरियड। दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू करंट एसेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year। दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। नाउ topic is factors affecting requirement of working capital. What are the factors that affect the requirement of working capital? First is nature of business. There are two types of business, that is trading as well as manufacturing. We had discussed in the last lecture in the concept of fixed capital, nature of businesses of two type, trading और manufacturing. ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम गुड्स को परचेज करते हैं और इमीडिएटली उसको सेल कर देते हैं। दैट मीन्स हमें कैश मिल जाता है। बट इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी गेट कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। दैट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद उसको फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करना, तो एक लंबा टाइम पीरियड लगता है।
मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग में हमें लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर चाहिए। तो दैट मीन्स कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का अगर बिजनेस है तो वहां पे हमें थोड़ा लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है तो ट्रेडिंग के बिजनेस में हमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा लेस होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, इट इज ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, एंड नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड इज स्केल ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस दो स्केल पे रन होता है, या तो लार्ज स्केल पे रन होगा या स्मॉल स्केल पे रन होगा। जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज स्केल का ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल पे स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं। लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है, दैट मीन्स लार्ज लेवल पे बिजनेस चल रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी। और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे रन कर रहा है तो वहां पे लिटिल वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। दैट मीन्स कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। नाउ थर्ड इज बिजनेस साइकिल। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द बिजनेस साइकिल। अगर हमारा बूम पीरियड है, बूम पीरियड है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, जैसे कभी कभी फेस्टिवल आते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो बूम पीरियड में हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, अचानक से डिमांड आई, तो उस केस में हमें क्या होगा, मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके रखनी है। लेकिन जब हमारा टाइम पीरियड बूम पीरियड नहीं है, एकदम रिसेशन पीरियड चल रहा है, बिल्कुल कुछ भी सेल, बहुत ज्यादा सेल नहीं हो रही है, तो बिजनेस साइकिल क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा। क्योंकि जब गुड्स हमारी सेल नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है, तो हम प्रोडक्शन किस बेसिस पे करेंगे। प्रोडक्शन तो हमारी तब इंक्रीज होती है जब बूम पीरियड हो, सडन डिमांड बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की बढ़ गई। लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है तो हम प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो करेंगे। जब प्रोडक्शन स्लो होगी तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द बिजनेस साइकिल। सो फोर्थ पॉइंट इज सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर, व्हाट इज द सीजनल फैक्टर, इसको ध्यान से सुनेंगे। देखो, हमारी जो फर्म्स होती है वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म डिमांड है, दैट मीन्स जिनकी प्रोडक्शन पूरा साल हो रही है और जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरा साल है। तो दैट मीन्स जब वो प्रोडक्शन भी पूरा साल हो रही है और डिमांड भी उनका पूरा साल है, तो ऐसे गुड्स में, ऐसे इस केस में हमारा क्या होगा कि हमें लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रही है वो हमारी ऑन टाइम सेल हो जा रही है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, कुछ गुड्स ऐसी होती है जो सीजनल फैक्टर, दैट मीन्स उनकी डिमांड सीजन वाइज होती है। लेकिन अगर हम, जब उनकी डिमांड आ रही है सीजन वाइज, और अगर हम उसका तब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम उनकी पीपल्स की डिमांड को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सीजनल फैक्टर्स में क्या हुआ कि कुछ गुड्स की प्रोडक्शन पूरा साल होती है लेकिन उनकी डिमांड सीजन वाइज होगी, तो उस केस में हमें क्या होगा कि अपने पास लार्ज अमाउंट में स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जब हम लार्ज अमाउंट में स्टॉक को मेंटेन करके रखेंगे, गुड्स तो हमारी सेल सीजन वाइज हो रही है, ऑन टाइम तो हमारे पास कैश में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है, तो उस केस में हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जिन गुड्स की डिमांड यूनिफॉर्म डिमांड है, पूरा साल डिमांड है, उस केस में लेस वर्किंग कैपिटल, और जिन गुड्स की डिमांड सीजन वाइज है उस केस में हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब हुआ कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। अब जहां पे प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग होगा, जहां पे बहुत लंबा टाइम लग रहा है कि रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में और सेमी फिनिश को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, तो वहां पे हमें क्या होगा, लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। और अगर ये प्रोडक्शन साइकिल हमारा बहुत शॉर्ट है, बहुत फास्टली रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स में और सेमी फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जा रही है, तो उस केस में हमें लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन साइकिल। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड, दैट मीन्स कि अगर हम फर्म में क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, सेल क्रेडिट में अलाउ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम गुड्स को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, हमारे पास पैसा तो तुरंत आ नहीं रहा है, लेकिन बिजनेस की वर्किंग को हमें तो रन करना ही है, तो उस केस में हमें क्या होगा, लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम क्रेडिट में सेल अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑन द स्पॉट कैश रिसीव हो जा रहा है, तो उस केस में लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट अलाउड।
7th इज क्रेडिट अवेल्ड। अब हम अभी तक तो हम अलाउ कर रहे थे, नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल्ड कि हमें गुड्स क्रेडिट पे अवेल हो जा रही है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे क्रेडिटर्स है वो हमें गुड्स को, रॉ मटेरियल को क्रेडिट में सेल कर देते हैं। जब उन्होंने हमें रॉ मटेरियल क्रेडिट में दे दिया, हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, हमारे पास कैश आएगा तो हम उनकी पेमेंट कर देंगे। अगर हमें क्रेडिट में अवेल हो जाता है रॉ मटेरियल और भी अदर मटेरियल, तो उस केस में हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेस होगी। लेकिन अगर हमें रॉ मटेरियल क्रेडिट पे अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट अवेल्ड। अगर हमें अवेल हो जाता है क्रेडिट में रॉ मटेरियल वगैरह तो लेस वर्किंग कैपिटल, नहीं होता है तो मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब हुआ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दैट मीन्स फर्स्ट हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको सेल करना और उसका अमाउंट जो कैश है वो रिसीव करना। ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है, अगर जिस बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेटर है दैट मीन्स वो फास्टली कन्वर्जन कर रहे हैं रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड इनटू फिनिश गुड्स, सेल और सेल के बाद कैश हमें रिसीव हो जा रहा है, तो उस केस में लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उनकी लॉन्ग है, उनको बहुत टाइम लग रहा है रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश में, सेमी फिनिश को फिनिश में, और गुड सेल हो गई, उसके बाद हमें डेटर से कैश में पेमेंट नहीं मिला, तो उस केस में हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेटर है तो लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेटर नहीं है तो मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कभी कभी ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल हमें जब अगर हमें सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जा रहा है ऑन टाइम, जब भी हमें रिक्वायरमेंट है हमें अवेलेबल हो जा रहा है, तो उस केस में हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास मेंटेन करके नहीं रखना है। जब स्टॉक बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करके रखना है तो लेस वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो ऑन टाइम हमें अवेलेबल नहीं होता है, हमें नहीं मिलता है वो, तो हम उसके लिए अपने पास लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। और अगर लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखना है तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वहां ज्यादा होगी। दैट मीन्स कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर इजीली अवेलेबल हो जा रहा है तो लेस वर्किंग कैपिटल, नहीं अवेलेबल हो रहा है तो हमें अपने पास बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करके रखना है, तो दैट मीन्स वहां पे मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अब बिजनेस दो तरह से होते हैं, एक ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरे बिजनेस की टाइप क्या होती है जहां पे ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारे बिजनेस की फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो उस केस में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, और अगर ग्रोथ हमारी बिजनेस में स्लो है तो वहां पे हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली अगर हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है, बहुत हाई कॉम्पिटिट कर रहा है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर को क्रैक करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अगर हमारी जो कॉम्पिटेंसी पावर है वो लेस है, हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। इन्फ्लेशन, अब ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, हाई प्राइस हो रहे हैं, बहुत इन्फ्लेशन है, तो वहां पे मोर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, और लेस अगर इन्फ्लेशन है तो वहां पे हमारी लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो फॉर द स्मूथ वे ऑफ वर्किंग, स्मूथ रन ऑफ बिजनेस, बोथ कैपिटल आर नेसेसरी, फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज working capital that means current assets. Fixed assets maintain the raise the structure of business, and for the smooth running of business working capital is must for the business. So this is the concept of working capital. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.